live. Namaste everyone. Welcome to yet another session of ICAN, India COVID Action Network, which is an initiative to help underprivileged communities that have been the hardest hit due to COVID-19. This is a unique movement to combat the pandemic through an online platform that connects those who are in need to help and those who can provide it. Our COVID warriors work from home, activating their on-ground community networks and mobilizing resource providers in order to connect to and ensure that the vulnerable sections of society can also sustain themselves. Through these difficult times, COVID warriors are spread across different states of India and steadily growing day by day. So today we have a very interesting session on yoga for immunity, insomnia, and anxiety, where we have with us a very special guest, Yog Guru Mangesh Trivedi ji. Namaste Mangesh Trivedi ji. Thank you so much for being a part of this. So मैं आपको थोड़ा सा मंगेश त्रिवेदी जी के बारे में बताती हूँ, ऑल्दो बहुत बड़ा उनका बैकग्राउंड है, मुझे पूरा 1 घंटा लग जाएगा अगर मैं बोलती रही उनके बारे में तो. But let me start with first that he is the founder and CEO of Yoga Karo. He is an MSc in Human Consciousness and Yogic Sciences from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar. With 12 years of experience at personal and professional level in the field of yoga, he organizes workshops for multiple corporates in India, and he also has various workshops on stress management, meditation as medicine, power yoga for weight reduction, prenatal, postnatal yoga, and yoga for kids. The list is actually endless, frankly, guys. But Mangesh ji has also been a part of various news channels. He has been interviewed by Shakti TV, Pragya TV, and so many more channels. And he has been awarded so many awards that I can go on and on, but I will name a few. The one being Aaj Ki Delhi Achievement Award for the Best Yoga Guru. Then he's been awarded Young Humanitarian Award. He has been awarded Swaraj Rakshak Samman, the Country Pride Award. And I think this 1 hour will be less to talk about his achievements. So before we move further, let me tell you about the statistics of COVID. COVID Action Network has served 5791 total needs. It has active needs of 1365, and it has solved 4426 needs. The lives impacted are in lakhs. They have impacted 4,02,1113 lives. And warriors are 4,107, along with their NGO partners of over 3,000. So it gives us immense pleasure to work with COVID and have the Yog Guru Mangesh ji with us. Mangesh ji, over to you. क्या कहना है आज आपका? कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद आपको, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, और आप सभी जो लोग जुड़े हुए हैं कोविन से, जो लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग बहुत दिनों से, मैं देख रहा हूँ पेज को, बहुत दिनों से आप लोगों की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोगों को आपने जोड़ा है, बहुत अच्छी सी सजेशन आई, बहुत अच्छी सी चीजें, मतलब जो भी, जैसे मोदी जी ने कहा था कि जान है जहान है, दोनों को बचाना है, तो जहान के बारे में बहुत बातें हुई इस पेज पे, जान के बारे में बहुत बातें हुई। अब जो बात आज हम करने जा रहे हैं, जैसा कि योग से इम्यूनिटी, इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी योग के द्वारा जो मानसिक चीजें, मानसिक विकार और शारीरिक विकार जो दूर किया जा सकते हैं, तो उस पे आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि देखा गया है कि अभी तक जो शुरुआत हुई थी, कोविड जो अभी चल रहा था, जो कोरोना वायरस का इफेक्ट था, वो अभी तक मैं इसको स्टेज 1 ही मान रहा हूँ। मैंने 4 मार्च को वीडियो बनाया था जब 11 या 12 केसेस थे,
हाँ आज जी, 2,27,000 के आसपास पहुंच गए हैं। हाँ, अवेयरनेस लोगों में बहुत बढ़ी है, बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, अब ज्यादा जरूरत है। अब सब हाँ, कुछ खुल गया, पहले सब कुछ लॉकडाउन था, सारी चीजें बंद थी। मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास आरोग्य सेतु ऐप जो है वो 200 के आसपास 1 किलोमीटर में दिखाता है। डर लगता है, लेकिन बिल्कुल, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम यस, पहले ही बात करेंगे इम्यूनिटी की। अगर आप डर गए तो आपकी इम्यूनिटी तुरंत कमजोर हो जाएगी, तो डरना हाँ। बिल्कुल नहीं है। तो डरना मना है। आज हमें आप क्या-क्या बताने वाले हैं जिससे हम डरेंगे नहीं और हम हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं? जी क्या-क्या आज हम आप कवर जी करने हम वाले हैं? बात करेंगे इम्यूनिटी पे। सबसे पहले तो मैं हम टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले हम इम्यूनिटी की बात करेंगे, बिल्कुल, थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ करता है वो, और क्या क्या हाँ इम्पैक्ट जी, करता है, उससे हार्मफुल क्या होता है और कौन से लोग ज्यादा उससे नुकसानदायक, किन लोगों को ज्यादा नुकसान होता है, बिल्कुल, तो उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इंसोम्निया पे, और हाँ जो जी, लॉकडाउन में रहने के दौरान जो भी डिजीजेस लोगों में हुई हैं, जो जो परेशानी उत्पन्न हुई है, जो भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं लोगों पे, लोगों के घरों में, जैसे बच्चे हैं, सारे लोग साथ में रहते हैं, तो जो जो जी प्रॉब्लम्स हाँ, क्रिएट हुई हैं, थोड़ा थोड़ा हम योगा, लाइफस्टाइल और कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस, क्योंकि सारा कुछ होता है ना, सब हमारे थॉट से चलता है। तो जी थॉट हाँ, प्रोसेस को किस तरीके से हम, हमारे यहाँ जो जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ के आया हूँ, वहां पे हमारे जो गुरु जी थे पंडित श्री राम शर्मा चाहे, उन्होंने कहा था उल्टे को उल्टा कर दो तो सीधा हो जाता है। जी, तो बिल्कुल। हमको उल्टे को उल्टा करना है, सारी चीजें अपने आप सीधी हो जाएंगी। वैसे तो आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से ही पढ़ी हूँ। मैंने भी अपना अरे हठ वाह, योग का कोर्स वहीं पे किया था। तो जब अरे वाह, मुझे पता बहुत। चला कि आप भी वहीं से पढ़े हैं, मैं आई वाज़ मैं वेरी पहले बैच का एक्साइटेड। स्टूडेंट हूँ एक्चुअली वहां का। चलिए बहुत हाँ अच्छी बात है ये। जी। जी जी। हमारे बिल्कुल, सामने बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज से यूनिवर्सिटी हमारे सामने ही बनी है। वेरी गुड। तो बढ़िया, और अच्छी, बढ़िया। अच्छा लगा आप हमारे परिवार से हैं फिर तो। हाँ तो जी, हम चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। बिल्कुल। उससे पहले हम कहते हैं कोरोना के बारे में थोड़ा सा। जो बेसिकली देखा जाए, कोरोना डिजीज जो है, जो वायरस है कोविड-19, वो हुँ, इंपैक्ट करता है हमारे लंग्स को और गले को। बेसिकली जी हाँ, गले से, गले में वो जाता है और धीरे हाँ, धीरे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। अगर ओके। अर्ली स्टेज पे उसको पहचान लिया जाए, अर्ली स्टेज पे उसका चेकअप हो जाए, हुँ, पता चल जाए, तो बहुत प्रॉब्लम वो क्रिएट नहीं कर पाएगा और उसको जल्दी ट्रीट करके जल्दी सही किया जा सकता है। हाँ लेकिन जी, कई बार ऐसा होता है जब सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, तो हुँ, बहुत ज्यादा हायर स्टेज पे पहुंच जाता है, जितना ज्यादा वायरस ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और आपने देखा होगा जब बात होती है कि बहुत तेज फीवर आ गया, फीवर क्यों आता है? जब हुँ, वायरस हमारा, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से, डब्ल्यूबीसी से लड़ता है, तब हुँ, क्रिएट होता है, तब बॉडी में फीवर क्रिएट होता है। जब डब्ल्यूबीसी हमारे खत्म होने लगते हैं, तब उसकी जी हाँ, वजह से जब लड़ाई होती है आपस में हुँ, वायरस से और हमारे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हुँ, तब फीवर क्रिएट होता है। फीवर पर्सनल कोई बीमारी नहीं होती है, वो तभी होता है जब ओके, आप, आपके इम्यून सिस्टम पे अगर आपको फीवर हो रहा है, जिन लोगों को फीवर होता है, एक तरीके से अगर माना जाए तो वो ठीक हो सकते हैं, उनमें चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। और मोस्टली देखा जाता है अच्छा, जब जिन लोगों की डेथ हो रही है, ऐसा नहीं कि बूढ़े हुँ, लोग ये मर रहे हैं, यंग एज के, अभी दिल्ली में कई हमारे पुलिस के लोग हुँ, हैं, कई डॉक्टर्स हैं, उन लोगों की डेथ हुई है यंग एज में, या कोई टीचर से, उनके सिम्टम्स उनको नहीं जल्दी समझ में आए। तो बिल्कुल, जब वायरस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो पूरा लंग्स को धीरे धीरे अंदर से जाम कर देते हैं। तो हुँ, योगा हुँ, में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लंग्स कैपेसिटी अपनी इंक्रीज करते हैं। जी हाँ, तो ब्रीथिंग ब्रीथिंग के थ्रू, आप भी योगा से हैं, आप जानते होंगे। और बिल्कुल, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने का योगा, ब्रीथिंग, प्राणायाम से बेटर एक्सरसाइज कोई है ही नहीं। अभी तक जो भी बिल्कुल, रिसर्चेज हो रही हैं, हमारी योगा करो के टीम के बहुत ढेर सारे लोग जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में योगा क्लासेस ले रहे हैं फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट। जी, जो भी यस, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स भी ले रहे हैं। हमने प्रपोजल भेजा है सरकार को, अगर हमको पूरा सुरक्षा का इंतजाम दिया जाए तो हम लोग वहां भी कराने के लिए तैयार हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां भी हम योगा कराने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके से भी हैं, कराने के लिए हम लोग हुँ, तैयार हैं। मतलब क्योंकि अभी आने वाले दिन में बढ़ेगा पेंडेमिक, आप देख रहे हैं 10,000 के आसपास डेली बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अब बहुत जरूरी है कि हर इंसान अपने आप को, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करे। आयुष ठीक है, मंत्रालय ने, आपको पता होगा, काढ़ा बताया, गर्म पानी बताया, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं। हुँ, हम हुँ, हुँ, डायरेक्ट बात करते हैं कि योगा के थ्रू कैसे इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं। तो ओके, कहा गया है कि योगा, सबसे पहले आज की डेट में मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, योगा, लोग दो चीजों में योगा को मान लेते हैं, आसन और प्राणायाम सिर्फ। मैं शुरू बिल्कुल, से अगर
कुछ कहेंगे दिशा जी इसमें, इसके बारे में कुछ? मैं आपकी नहीं, राय जानना चाहता आपने बहुत सही चीज पकड़ी, बिकॉज मेरे पास भी जो लोग आते हैं वो लोग बस ये बोलते हैं कि हमें वेट कम करना है, हमें तो हूं। जी बस जी वेट कम करना है। जी बट बिल्कुल। लोग उसके इंटरनल बेनिफिट्स के लिए नहीं आते, और लोग ये नहीं सोचते कि आपके जो 23 घंटे हैं वो भी योग ही है। जी 1 घंटा तो बिल्कुल। आप आए हैं मेरे पास, बट बाकी 23 घंटे जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो भी योग है। तो जी ये तो आपने मैं बहुत उसी सही में बात थोड़ा कही। सा थोड़ा सा समय लूंगा। बिल्कुल। योग में हम पतंजलि को पतंजलि जी को आदर्श मानते हैं, तो अष्टांग योग है जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हाँ जी। हाँ। होता क्या है, हमने आसन पकड़ लिए प्राणायाम पकड़ लिए, आप डायरेक्ट बिल्कुल कभी भी दूसरी मंजिल पे तीसरी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, तो आप पहली और दूसरी मंजिल नहीं चढ़ेंगे। बिल्कुल। यम नियम बहुत आवश्यक है। यम हो गए हमारे समाज में जीने के, हम समाज में किस तरीके से जीते हैं, सोशल जी। वैल्यूज को किस तरह से फॉलो करते हैं, ये हमारे एम हो गए। नियम हो गए हाँ। हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनली किस तरीके से लाइफ में क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, वो हमारे नियम हो गए। हाँ तो जी। योग में कहा गया है योगाहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कौशलम। अगर योग का आपको लाभ लेना है, तो अगर आप आहार और विहार ठीक से नहीं करेंगे तो योग का लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं बिल्कुल। सबसे पहले आता हूं इम्यून सिस्टम को सही करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे। यस। हम हमेशा ये बात कहते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल ठीक से नहीं रखते हैं तो आपको बीमारियां आपकी बढ़ेंगी, फिर आपको योगा नहीं किसी भी चीज से उसको ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल। आपको लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत है, और उसमें अगर आप कैसे लाइफस्टाइल ठीक से कर सकते हैं, उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हाँ। तो मेरी एक अपनी रिसर्च है कि आप बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कीजिए। ओके। हाँ आपने जी। पक्षियों को देखा होगा, पौधों को देखा होगा, वो हम्म। बीमार नहीं पड़ते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप फूल को देखिए, पक्षी को देखिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, उनके मन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो खुशी बांटते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं। अगर आज की बिल्कुल। डेट में देखा जाए तो कौन से भगवान हमको दिखते हैं, भगवान मानते हैं, और कौन से हमको दिखते हैं? सिर्फ एक भगवान है, सूर्य भगवान। अगर जी हम हाँ। उनके हिसाब से चलना शुरू कर दें, हाँ। सूरज के साथ चलें, उसके हिसाब से हम्म। खाएं पिए, उसी हिसाब से सोएं, उसी हिसाब से जगें, तो हम्म। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप बढ़ जाएगी, हमारा लीवर अपने आप से ठीक से काम करने लगेगा, ये चीजें हमारी अपने आप से ठीक हो जाएंगी। तो हम्म। बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करने को मैं जरूर कहता हूं, और उसके लिए बहुत छोटा सा मेरा फंडा है, बहुत छोटा सा, कि आप जिस तारीख में जगते हैं उस तारीख में कृपया सो जाएं, सेम डे। हाँ एक बहुत जी। छोटा, एक एक नहीं, ये मेरी अपनी एक रिसर्च है कि अगर आप जिस हम्म। तारीख में सोते हैं उस तारीख में सो जाएं, हम्म। जगते हैं जिस बिल्कुल। तारीख में उस तारीख में अगर आप सो जाएं, तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक हो जाएगी। 6 घंटे तो कम से कम आप सो लेंगे मेरे हिसाब से। हम्म। मोस्टली प्रॉब्लम ये बट होती है कि जब 12 बजे के बाद जगते हो, तो आपका हाँ। लीवर काम करना, सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है लीवर पे। 12 बजे से 2 बजे का जो टाइम हम्म। होता है वो लीवर के रेस्ट हम्म। करने का टाइम होता है। जब उसको आप रेस्ट नहीं हम्म। दोगे तो वो वीक होने लगता है, और जब लीवर वीक होने लगता है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है तो हमारे सारे ट्रैक खराब हो जाते हैं। बट तो ये मैंने हो ये गया हमारा। देखा है, जी मंगेश जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने ये देखा है कई लोगों में, फॉर एग्जाम्पल कई लोग जिनकी आदत होती है 11-12 बजे उठने की, उनको जी अगर कभी जल्दी उठाया जाए जैसे 7-8 बजे, तो वो जी जी इतने चिड़चिड़े होते हैं, इतने नींद में होते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो उनको क्या करना चाहिए अपनी नींद भगाने के लिए, या वो नींद ऐसा भग क्या करें? देखिए, नींद भगाने नींद। के लिए तो पहले तो वो सही करें अपना टाइम। हाँ जी। और अगर आपको हाँ। नींद भगाना है तो बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो आप नेक नेक मूवमेंट करते हैं, नेक रोटेशन। अगर आपको ओके। सर्वाइकल नहीं है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो आप करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। आप इसको हाँ करके जी। देखिए तुरंत। ओके। ओके। कितनी भी आपको सुस्ती आ रही हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर्वाइकल, जिन लोगों को सर्वाइकल है हाँ। उनको ये हम्म। नहीं करना है, उनको सिर्फ पीछे पीछे का करना है। ये देखिए आप, अच्छा। बाकी आप, तो ये आपका सुस्ती हम्म। होता क्या है, मैं आपको उसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। जब हाँ जी। नॉर्मली हम नेक होता है, तो नॉर्मली नेक रहती है तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो रहता है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम जाता है, ओके। स्टिफनेस जब हाँ। नेक में, जब आप मूवमेंट करेंगे तो थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। हाँ हमारे जी। योगा की जो थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट वो यही है, आप तो जानते होंगे अच्छे तरीके से, हाँ जी। कि जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है वहां पे ब्लड फ्लो आप बढ़ा दो, वहां से बिल्कुल। अनऑर्गेनिक जो मैटर है वो बाहर निकल जाएगा। जब अनऑर्गेनिक मैटर बाहर निकल हाँ जाएगा तो वो जी। स्वस्थ हो हाँ। जाएगा। हाँ। सिंपल सा हाँ। तरीका हाँ। होता है, तो वही सेम करना है। उसके अलावा अगर आप कपालभाति तुरंत करवाइए, ओके। तुरंत। अच्छा। हाँ। हाँ। थोड़ा गुस्सा तो मतलब बढ़ेगा, हाँ। लेकिन कपालभाति करने के बाद, हम्म। हम्म। पहली बात तो कोई करेगा नहीं, अगर
होगा तो। लेकिन अगर कपालभाति नियमित रूप से कराएंगे, अभी तो गर्मियां चल रही हैं, भस्त्रिका नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कपालभाति आप कराएंगे तो नींद की जो समस्या है, जो आप डिजीनेस फील होती है, वो दूर हो जाएगी तुरंत। अब हम सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, योग से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। ओके। तो कुछ सिंपल सा आप आसन जानते होंगे आप। पहले तो नींद की बात मैंने की, आप कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए। और ये सोने का मतलब ये नहीं कि सुबह 4 बजे सो के 10 बजे तक सोइए। मैंने कहा ना 12 बजे तक सो जाइए, सुबह 6 बजे तक उठ जाइए। ये है मेरा कहने का मतलब। अगर मजबूरी है किसी की नाइट शिफ्ट है तो सो सकता है, वैसे प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, और थोड़ा डिजिटल चीजों से दूर रहिए। वो ही तो बीमारी है, वो एक बड़ी बीमारी है आजकल। क्या करें। हम लोग इस पे भी वर्कशॉप कर रहे हैं। हमने एक नया वर्ड रखा है, डिजिटल डिटॉक्स। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। योगा से डिजिटल डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, इस पे कुछ लोग, हमारे टीम के लोग काम कर रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में हमने भी वर्कशॉप इस पे किए, सेमिनार किए हैं। आपके मध्य प्रदेश में भी एक हुआ था कुछ दिन पहले। ओके। तो इन चीजों के अलावा पानी ठीक ठाक मात्रा में पीजिए। आप जानते होंगे कि जितना ठीक ठाक तरीके से आप पानी ठीक मात्रा में पिएंगे, 3 से 4 लीटर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जब भी आपको प्यास लगती, बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है, तो आपका जो टॉक्सिन मैटर है बॉडी से निकलता रहेगा। उसके अलावा प्राणायाम की हम बात करते हैं तो कपालभाति को में प्राणायाम भी होती है, क्रिया भी होती है, आप जानते होंगे। और कोई भी आपको प्राणायाम अगर करना है तो बिना कपालभाति के नहीं करना चाहिए। जैसे आप खाना खाते हैं तो बर्तन साफ करते हैं, उसके बिना खाना नहीं खाते हैं। ऐसे ही बिना कपालभाति किए हुए आपको कोई प्राणायाम नहीं करना चाहिए, किसी को भी, क्योंकि कपालभाति से लंग्स क्लीन हो जाते हैं प्रॉपर्ली आपके। और ये बताना जरूरी है कि जिन लोगों को हाई बीपी है वो कपालभाति ज्यादा ना करें। हाई बीपी है, सर्जरी हुई है, तो वो लोग कपालभाति ज्यादा ना करें। तो हम कपालभाति कर सकते हैं, हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, और ओम चांद करेंगे। ये हो गया आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। जो आपके जितने बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कपालभाति मैं करके दिखा देता हूँ, आप भी कर सकते हैं साथ में। हाँ जी, बिल्कुल। या आप ही करके दिखा दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो कपालभाति में हम पहले एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे, अपनी कमर को सीधा रखेंगे, और फिर हमें एक लंबी गहरी श्वास लेनी है अंदर, और फिर हमें पेट को अंदर दबाते हुए नाक से श्वास बाहर छोड़नी है तेज। एक बार आप देख सकते हैं पहले। इसके हम 2 राउंड कर सकते हैं, 30 to 40 breaths each। और जो the women who are menstruating, जो अपनी साइकिल पे हैं, वो इसको अवॉइड करें। जी मैं आपको इसमें थोड़ा सा, जो लोग ठीक से नहीं कर पाते उनके लिए छोटा सा टिप्स आपको देता हूँ। हाँ मैं प्राणायाम करना है कभी भी तो रीढ़ की हड्डी आपने बहुत अच्छा बताया, सीधा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो लोग करते हैं कपालभाति, गलत और सही में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हाँ जी, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। जी हाँ, ये हो गया गलत। यस। सही तरीका ये हुआ। यस। आप सांस छोड़ेंगे, आपका पेट अंदर जाएगा। बिल्कुल। कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना होता है, आप सांस छोड़ेंगे, एक सर्टेन गैप दीजिए आप, 1 सेकंड का, हाफ सेकंड का, जितनी आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद जाने वाली सांस जो है वो फोर्सफुली जाएगी, बहुत तेज से। आने वाली सांस ऑटोमेटिक आनी होती है। और 60 के सेट मिनिमम जो इसका होता है, 1 times 60 और मैक्सिमम 200। बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है इसमें। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा नहीं करना है, 60 राउंड करने हैं एक बार में मिनिमम, जो लोग स्टार्टिंग से करते हैं। और 3 सेट आराम से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मियों में नहीं करना है, जाड़ों में आप इसको बढ़ा सकते हैं। लाभ इसके बहुत ज्यादा है, लंग्स कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, लंग्स क्लीन होते हैं। जैसा कि नाम है इसका कपालभाति, कपाल होता है माथा और भाति होता है स्वच्छ करना। तो इसका अगर आप ठीक से अभ्यास करते हैं तो आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा, आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्किन बहुत अच्छी होती है, मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा कि अगर नियमित रूप से जो लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं, जो रेगुलर करते हैं, उनका स्किन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि टॉक्सिन मेटल बॉडी से निकल जाते हैं।
जो लोग शुरू में एकदम से करेंगे उनके चेहरे पे दाने हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, क्योंकि टॉक्सिन निकलते हैं। और जब भी आप ये करते हैं तो पानी जरूर भरपूर मात्रा में पिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि गर्मी बढ़ती है। तो बहुत गर्मी में इसको नहीं करना है, और एक बार में 260 से 200 से ऊपर नहीं करने, एक बार में 3 बार करना है। और ध्यान रखना है खाना खाने का 4 घंटे का गैप होना चाहिए। बाकी प्राणायाम आप कर सकते हैं, कपालभाति के लिए 4 घंटे का गैप होना जरूरी है। बिल्कुल। ये हो गया कपालभाति। पहले हम प्राणायाम आपको बता देते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए है। उसके अलावा जब दूसरी बात हम आती है तो भस्त्रिका बहुत लाभप्रद है, लेकिन भस्त्रिका अभी नहीं करते। अभी गर्मियां चल रही हैं, भस्त्रिका 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो भस्त्रिका अभी नहीं करनी, पर एक बार हमें करके आप दिखा दीजिए भस्त्रिका लोगों को, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी कोई देखना चाहता है, करना चाहता है तो कर सकता है। तो ठीक है, तो भस्त्रिका में हम जैसे हम कपालभाति में सिर्फ श्वास बाहर छोड़ते हैं, भस्त्रिका में हम तेज श्वास अंदर और बाहर करते हैं, वो भी नाक से। जी बिल्कुल। भस्त्रिका में क्या होता है कि जो लोग ठीक से कपालभाति नहीं कर पाते हैं वो भस्त्रिका आराम से कर सकते हैं, और इसमें लंग्स कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ती है और क्लीन होता है। लंग्स कैपेसिटी जब बढ़ती है, आपने देखा होगा जो भी आर्मी के लोग होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो खेलना जब नहीं भी खेल रहे होते तो प्रैक्टिस जरूर करते रहते हैं। वो सिर्फ इसीलिए करते रहते हैं ताकि जो ब्लड में ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो ठीक से बना रहे। उसके लिए वो चाहे रनिंग करते हैं जो लोग। तो इस समय जो माहौल है, आप घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, या नहीं भी, जो लोग अभी भी नहीं भी हैं, लॉकडाउन नहीं भी लगा, तो जो लोग जरूरी नहीं कि नेसेसरी नहीं कि हम लोग निकलें, उसके लिए लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो भस्त्रिका और कपालभाति बहुत लाभप्रद है। बस आपको ये ध्यान रखना है, हाई बीपी वालों को नहीं करना है, सर्जरी वालों को नहीं करना है, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है उनको भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, या जिनको नींद की बहुत समस्या होती है। कई लोग कहते हैं कि नींद की समस्या में कपालभाति लाभप्रद है, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कपालभाति नींद की समस्या में और डिस्टर्ब करता है। तो कपाल, उसके अलावा और बहुत ढेर सारे प्राणायाम किए जाते हैं नींद की समस्या में जो मन को शांत रखने वाले होते हैं, पर कपालभाति उसमें ज्यादा नहीं करते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़िया जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, 2002 में मैंने एडमिशन लिया था और 2020 चल रहा है, 18 साल हो गए, पास आउट हुए मुझे, मतलब 16 साल हो गए। तो मैं उसके हिसाब से बताता हूँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है उसको मैं प्राणायाम में प्रधानमंत्री मानता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ उसको। बहुत बहुत फायदेमंद है, मतलब जिसका जितने फायदे बताए जाए मैंने खुद आजमाया है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को कराया है जो आईसीयू से निकल के आए थे, उनको 90 इयर्स के थे। एक हमारी क्लाइंट थी 90 इयर्स की थी, वो आईसीयू से निकल के आई थी, उनको डिमेंशिया हो गया था, सब कुछ भूल जाती थी, चल नहीं पाती थी। उनको मैंने लेट के अनुलोम विलोम कराना शुरू किया, उसके बाद चलती फिरती 10 साल उसके बाद ठीक से पूरे 100 इयर्स की होके उनकी लास्ट ईयर दिवाली वाले दिन उनकी डेथ हुई। तो मैंने इसका खुद एग्जाम्पल देखा है, मतलब लिखा पढ़ा हुआ नहीं। आई थिंक ये सबसे इजी और सबसे फेवरेट प्राणायाम है, कोई भी कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आपकी सर्जरी हुई है, आपका कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ है, कभी भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है जो हायर स्टेज होती है होल्ड करने की, वो सबको नहीं करना होता है। तो अनुलोम विलोम करेंगे हम, बिल्कुल। आप ही सर्च करके बता दीजिए, फिर मैं एक बार और कर लूंगा। आप एक बार, आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, क्लियर। तो आपका बायां हाथ रहेगा ज्ञान मुद्रा में, उसको आप अपनी नीज पर रेस्ट कर सकते हैं। आपका दायां हाथ रहेगा नासिकाग्र मुद्रा में, आपकी मिडिल और इंडेक्स फिंगर बेंड रहेगी, और आप अपनी दाई नासिका को बंद करेंगे। हम होल्ड वाला करें अभी? नहीं, बिना होल्ड के आप करिए, अभी बिना होल्ड के करिए, क्योंकि सबके लिए कर रहे हैं। हाँ जी, तो हम बाई नासिका से श्वास अंदर लेंगे, बाई नासिका को बंद करते हुए रिंग और छोटी फिंगर से हम दाई नासिका को खोलेंगे और दाई नासिका से श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर दाई नासिका से श्वास अंदर लेंगे, दाई नासिका को बंद करते हुए बाई को खोलेंगे और बाई से श्वास बाहर। ये था एक राउंड ऑफ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। जी, तो होता क्या है इसका मैं आपको लाभ बता देता हूँ। ये आपने इसको, एक और इसका नाम है, इसको प्रणव मुद्रा भी बोलते हैं। जी हाँ जी। और मोस्टली जो लोग कराते हैं वैसे ऐसे कराते हैं, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है,
इसीलिए प्रणव मुद्रा अडॉप्ट की गई है, देखने में थोड़ा अच्छी लगती है। देखिए आप इसको। हाँ जी। और रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी है सारे प्राणायाम में। होता क्या है, जो हमारी इड़ा और पिंगला नाली होती है तो उसका बैलेंस बना रहता है, तो प्राण जो प्राणवायु है सुषुम्ना के थ्रू ऊपर जाती है तो बैलेंस बना रहता है। अब इसका लाभ क्या होता है और कैसे लाभ करता है, मैं आपको एनाटॉमी में और योगा में दोनों में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल होता है, ये होता है हमारा काम करने का, जो इसकी स्वर होता है दाहिना स्वर, ये काम करने को रिप्रेजेंट करता है, जो हम काम करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। और जो बायां हमारा होता है ये हमारा मेंटल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, जो मेंटल एक्टिविटी होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है, दोनों बैलेंस होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी जो होती है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आज की डेट में, जो इंसोम्निया है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी या फिजिकल और मेंटल कोऑर्डिनेशन जब ठीक से नहीं बैठता है। हम मेंटल एक्टिविटी तो बहुत करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी दिन में 1 या 2 घंटे भी नहीं कर पाते, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। उसके लिए अनुलोम विलोम बहुत लाभप्रद होता है। अगर आप नहीं भी पाते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप ठीक से आप थोड़ी देर कर लीजिए, 10 मिनट तक। इसका लाभ आप तभी ले पाएंगे, 2 मिनट में इसका लाभ नहीं होता है। जी मैं आपको सही बताऊं, 10 से 15 मिनट तक आप इसको कीजिए, आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आप रिजनरेट, आपके अंदर जो सेल होते हैं ना बॉडी के, वो रिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं कि आप 15 मिनट रेगुलरली करते हैं। और इसको 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इसमें खाने पीने का भी बहुत कुछ नहीं है, मतलब किसी भी टाइम इसको किया जा सकता है। दूसरा, अगर मेरे हिसाब से इसको गुस्सा किसी को आए तो उसको भी ये करना चाहिए, वो भी काम डाउन हो जाता है। बिल्कुल। गुस्सा के लिए मैं 2 प्राणायाम आपको और बताऊंगा, बिल्कुल आजमाया अभी 2 प्राणायाम। ठीक है, एक नहीं 2 प्राणायाम गुस्सा के लिए। मैं आपको गुस्सा के लिए और स्ट्रेस के लिए 2 स्पेशल चीजें हैं जो आप तुरंत करिए, आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा। ओके। मैं जाता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में जाता हूँ, वर्कशॉप ऐसे क्लास की, तो वहां पे तुरंत प्रैक्टिकली योगा है ही प्रैक्टिकली। थ्योरी योगा में सिर्फ 1% है, 99% प्रैक्टिकल ही है। बिल्कुल। और जब तक करके आप देखेंगे नहीं, रिजल्ट नहीं देखेंगे, मैं 15-16 साल से देख ही रहा हूँ, तब तक इसका लाभ आप नहीं, जब तक आप आजमाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक नहीं हो सकता है। तो हम अब आते हैं, ये हमारा एक तो हो गया आयुर्वेद के हिसाब से लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल। अब अगर हम एनाटॉमी में बॉडी की जाते हैं, तो एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम पे बहुत ढेर सारी रिसर्चेज हुई हैं, और सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाली रिसर्च जो है एम्स में, हमेशा 4 या 5 रिसर्च होती रहती है अनुलोम विलोम प्राणायाम पे। तो नर्वस सिस्टम के बीच में जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जब नर्वस सिस्टम आपका ठीक रहेगा, तो आपका अगर नर्वस सिस्टम ठीक रहता तो बाकी चीजें अपने आप, आपका स्ट्रेस सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है नर्वस सिस्टम पे। अगर आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है तो आपका स्ट्रेस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कितना भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस होगा लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये बेसिकली बात होती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए हर चीज में फायदा करता है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने में तो फायदा करता ही करता है, बाकी सब बहुत ढेर सारी चीजों में फायदा करता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसको कितनी देर तक करना है, इसको 2 मिनट से शुरू कीजिए आप। और 2 मिनट से लेके इसको 15 मिनट तक कर सकते हैं। इसमें एक रेशियो होता है, आपको पता होगा, जितनी देर में आप सांस लेते हैं उतनी देर में छोड़ना होता है, और उतनी देर ही फिर वापस लेना होता है, उतनी देर छोड़ना होता है। ये रेशियो स्टार्टिंग के लोगों के लिए होता है। जब आप 3 महीने कर चुके हो, तो उसके बाद जितनी देर में आप सांस लेते हैं उतनी देर होल्ड करिए, और उसके उतनी देर में आप एक्सहेल कीजिए। जो लोग और अभ्यास करते हैं, जो हायर स्टेज के योगाभ्यासी होते हैं, जो हायर स्टेज में, जिनको योगी हम लोग कहते हैं, आजकल तो कोई भी नाम के आगे लगा लेता, अलग बात है। बिल्कुल सही बोला। उसमें क्या होता है, सेम टाइम इनहेल, सेम टाइम एक्सहेल एंड डबल टाइम इनहेल, सेम टाइम इनहेल, सेम टाइम होल्ड एंड डबल टाइम एक्सहेल। जितना ज्यादा सांस को, जो हमारी रेचक की क्रिया होती है, अगर आप पतंजलि योग सूत्र में जाएंगे तो प्राणायाम किसी का नाम नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ 3 चीजें मिलेगी, रेचक, पूरक, कुंभक। इनहेल, होल्ड और एक्सहेल, 3 चीजें मिलेंगी। इनहेल सब आराम से कर सकते हैं, होल्ड सब कर सकते हैं। एक्सहेल करने का जो प्रोसेस होता है उसको धीरे धीरे स्लो किया जाता है, और जो एक्सहेल करने का प्रोसेस जितना ज्यादा स्लो जिसका होता चला जाएगा, उतना ज्यादा आपकी जो बॉडी की जो लिविंग कैपेसिटी है, जो लाइबिलिटी है या मोरलिटी है, जिसको कहते हैं इमोरल हो गए। अगर आप आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो आप अमर हो जाते हैं, इमोरल हो जाते हैं, 100 साल से ऊपर जी सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो नहीं, लेकिन मेरे गुरुजी हैं, वो हिमालय में किसी को मिले थे 200-300 साल के ऊपर के लोगों को। एक मेरे सर है राजेश राज जी, वो कभी साधना करने गए थे तो उनको मिले थे। वो ऐसे लोग हैं हिमालय में, मतलब अच्छा, हाँ, कि वो मतलब 100 साल, 150, 200 साल तक जीते हुए पाए गए हैं।
अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, आपने देखा हो शायद, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था। इतने जाड़े में कोई नंगे बदन वहां पे घूम रहा था, कोई योगी। हाँ जी, हाँ। तो वो ये योग की शक्तियां होती हैं, मतलब वो रियल में है शक्तियां हैं। अगर आप कुंभक आपका अच्छा सिद्ध हो जाए तो आपको जाड़ा गर्मी कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा बाहर की चीजों का। अंदर से आपकी वाइटलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा अब आप, हमारा सूर्य नमस्कार हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। अगला हम प्राणायाम पे आते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, आप जानते होंगे। जी हाँ, जी हाँ। भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, आपका जो मास्टर ग्लैंड होती है, पिनियलो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो सारे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को रिप्रेजेंटेट करती है, उसको बैलेंस करती है, उसका सिक्रीशन बेटर करती है। तो हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम ठीक हो जाता है भ्रामरी प्राणायाम के थ्रू। जब हार्मोनल सिस्टम ठीक हो जाएगा तो इम्यूनिटी पावर अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा ये जो मैंने बात बताई, ये रिसर्च की बात है कि ये लाभ होता है। बाकी जो नॉर्मल दिखने वाले लाभ हैं, जितनी भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, कंसंट्रेट ना होना, हाँ जी, जो भी जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, बहुत जल्दी मूड स्विंग होना, ये सब चीजों के लिए भ्रामरी बिल्कुल रामबाण है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 5 बार करने से, 10 बार करने से लाभ आप नहीं ले सकते। पहली बात तो योग को आपको एज ए लाइफस्टाइल रेगुलर करना है और भरपूर मात्रा में करना है। मैं प्राणायाम पहले मैंने किया, आसन मैंने पहले नहीं किया, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये हायर स्टेज होती है, चौथा चरण होता है प्राणायाम। प्राणायाम की चर्चा, आसन हमने इसलिए नहीं की क्योंकि आसन पे आप जाएंगे तो हम फिर आसनों की चर्चा करेंगे। अभी हम प्राणायाम की चर्चा इसलिए क्योंकि वो कोई भी अभी भी कर सकता है, स्पेशली उसके लिए बाकी की जरूरत नहीं होती है। और तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो जो हमारा सिस्टम होता है, जो ग्रे मैटर माइंड के अंदर का होता है, जो इसके अंदर ग्रे मैटर होता है, जो हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, वो धीरे धीरे साफ होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, विचार हमारे परिष्कृत होते हैं, जो हमारे थॉट पावर्स हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारा थॉट पावर प्रोसेस होते हैं। आप कितना भी, अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊं, कितना भी आपको गुस्सा आ रहा हो, कितना भी आपको चिड़चिड़ापन हो रहा हो, आपको अनईजी फील कर रहे हो, आप करिए भ्रामरी प्राणायाम, कम से कम 11 बार कीजिए। लेकिन वैसे मैं 5 बार कहता हूं, लेकिन अगर आपको लाभ लेना है उसका और थेरेप्यूटिकल यूज करना है आपका, तब आप उसको कम से कम 11 बार आप कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। अब भ्रामरी प्राणायाम मैं आपको करके बता देता हूँ। बाकी प्राणायाम मैंने आपसे कराया। नेक, हेड, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बैक शुड बी स्ट्रेट, पीठ सीधी रहेगी। आप नॉर्मली लोग ये कराते होंगे भ्रामरी प्राणायाम, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये बेसिकली सतमुखी मुद्रा होती है, ये भ्रामरी प्राणायाम नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, हर आदमी, देखिए हर जितने भी योगा टीचर आपको मिले अलग अलग कराएंगे, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जब आप यहाँ पे करके करते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है ये उंगलियों के टच पॉइंट पे रहता है, इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। हम लोग जो करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप ये सीधे रहेंगे हाथ, इस तरह से आंखें बंद रहेंगी, ये बिल्कुल ठीक करेंगे। आप भी करिए, आप ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा बिल्कुल आप। और इसमें आपको बिल्कुल बंद कर लेना है कानों को, सांस आपको लंबी गहरी सांस खींचनी है, सांस लेंगे लंबी गहरी, ये एक राउंड आपका हो गया। जितना तेज आप कर सकते हैं, जितना तेज आप कर सकते हैं उतना तेज आपको करना है, और वाइब्रेशन माइंड में फील होना चाहिए इसका। बिल्कुल, आई थिंक ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। मैं बस वही कहने वाला था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, और बच्चे कर भी लेते हैं। हाँ, उनको मजे आते हैं ये प्राणायाम। जी, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, बड़ा 10 साल का है और छोटा 6 साल का है, तो बहुत अच्छे से करते हैं, उनको अच्छा लगता है करते हुए। जी हाँ। इसका नाम भ्रामरी क्यों पड़ा कि जब भौरा होता है, भौरे की तरह जो गुंजन करता है, उससे उसका नाम भौरा पड़ा। और एक चीज है, जो भौरा होता है वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट निकालता है फूलों से। तो अगर हम भ्रामरी प्राणायाम अच्छे तरीके से करते हैं तो हम, जो हमारी एक्सेप्शनल पावर होती है, जो हम चीजों को एक्सट्रैक्ट करने की पावर होती है, वो बढ़ जाती है। आप चीजों को जल्दी कैच कर सकते हैं, एक तरीके से कहा जाए, और चीजों से को सार्थक से अंदर से समझ सकते हैं। समझने की जो पावर हमारी है वो बढ़ जाती है। इसी मतलब एक इसका और एक दूसरा पार्ट है,
ये भ्रामरी प्राणायाम हो गया, और उसके अलावा ओम चांट। ओके। ये एक इतने प्राणायाम का हमारा रहता है पैकेज, और ये भ्रामरी प्राणायाम सारे लोग कर सकते हैं जिनको कान में समस्या है, कोई कान में कोई पानी चलाते हैं, कान की कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, उन लोगों को भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना होता है। और एक आपको बात बता दूं, जो एक्यूट डिप्रेशन में होते हैं उनको भ्रामरी प्राणायाम नहीं करते। बाकी नॉर्मल डिप्रेशन में भ्रामरी प्राणायाम बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन एक्यूट डिप्रेशन वाले और जो सुसाइडल अटेम्प्ट वाले होते हैं उन लोगों को भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा और अपने आप को और इंटरनली अंदर ले जाता है। हाँ जी। उसके अलावा ओम चांट हो गया, तो ये हमारा इम्यूनिटी के लिए हो गया। बिल्कुल। अब आप एक बार सूर्य नमस्कार करके दिखा दीजिए सबको। जी हाँ। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। और मैं तब तक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं, 12 अगर देखा जाए 24 घंटे को तो 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो उस तरीके से ये सूर्य नमस्कार हमारा होता है, और ये इंटरनली और आउटरनली जितने बॉडी पार्ट शरीर के होते हैं दोनों को बहुत लाभप्रद होता है, मतलब दोनों को बहुत फायदा पहुंचाता है। जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट होते हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन सबसे सबको मजबूत करता है। और जितने भी आउटर बॉडी पार्ट होते हैं, फिगर करेक्शन के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। जी दिशा जी, शुरू करेंगे। अब आप शुरू करें? जी बिल्कुल। तो पहले हम आएंगे प्रणाम आसन में। हमारे हाथ रहेंगे नमस्कार मुद्रा में। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे यहाँ पर। फिर हम श्वास अंदर लेते हुए हाथों को उठाएंगे, अपने चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे और थोड़ा सा अपनी बैक को स्ट्रेच करते हैं, ऊपर आसमान या सीलिंग की तरफ देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हम अपने हिप्स से फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे, पद्महस्तासन। अपने सिर को ढीला छोड़ते हुए अपने घुटनों को टाइट रखेंगे। यहां से हम अपना दायां पैर पीछे लेकर जाएंगे। अब इसमें सब लोग अलग अलग करते हैं। हम अपने हाथों को भी उठा सकते हैं, चाहे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, और अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सिर्फ ऐसे रह सकते हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक करें। 1 मिनट आप होल्ड रखिए, मैं इसमें बताता हूँ। ये आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक है, दोनों हाथ और पैर एक लाइन में होने से वर्टिकल, बिल्कुल सीधा लाइन में। हाँ जी, ये परफेक्ट होता है। आपके घुटने और एंकल भी एक लाइन में, एक लाइन में होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, इससे आपका नी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी, ये बस ध्यान, इसमें सिर्फ 3 और 8 जो होते हैं, जो पोस्चर्स के संचालन होता है, इसी को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी पोस्चर्स आराम से हो जाते हैं। हाँ, इसी में थोड़ा सा आपको जी आगे कंटिन्यू करिए दिशा जी। इसके बाद हम जाएंगे पर्वतासन, माउंटेन पोज में, जिसमें हम हमारा बायां पैर दाएं के पास लेकर जाएंगे। अपने सिर को नीचे झुकाते हुए हम या तो अपने घुटने पर देख सकते हैं या फिर अपनी नाभि पर देख सकते हैं। आपके एल्बोज एकदम टाइट रहेंगे। यहां से हम जाएंगे अष्टांग नमस्कार में। 8 parts of our body touching the mat: chin, palms, chest, knees and toes. यहाँ पर हमारी श्वास को हमें रोक कर रखना है। फिर श्वास अंदर लेते हुए पैर सीधा करते हुए, एल्बो सॉफ्टली बेंट, अपने चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए, बैक आर्च करते हुए ऊपर देखेंगे। भुजंग आसन में ये आसन आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है, आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है, स्पेशली जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। फिर यहाँ से हम सूर्य नमस्कार को खत्म करने के लिए पर्वत आसन में वापस जाएंगे। दोनों पैर साथ में, घुटने सीधे, एल्बोस टाइट। आप अपनी नाभि या घुटने पर देख सकते हैं। फिर दायां पैर उठाते हुए उसको सामने लेकर आएंगे। चाहे तो घुटनों को रेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बैलेंस मेंटेन होता है तो आप अपने हाथों को उठाकर जोड़ भी सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पाम्स बाय द साइड ऑफ योर फीट, अपने बाएं पैर को उठाते हुए आगे लेकर आना है पद्महस्तासन में, और श्वास अंदर लेते हुए वापस ऊर्ध्वहस्तासन एंड देन प्रणाम।
डन। हेलो जी। जी रीता जी, तो आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जी, तो ये सूर्य नमस्कार जो हो गया, बेसिकली हमारे इंटरनल और आउटर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सारे को रिजुनेट करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे जितने भी हमारा, आप देखिए लीवर देखिए, पैंक्रियाज देखिए, इंटेस्टाइन देखिए, हर पोस्चर्स में अलग अलग से आपने, जब आपने भुजंगासन किया तो आपका चेस्ट और जो आपका इंटेस्टाइन का अपर होती जो है, जो बड़ी आंत हमारी है अपर इंटेस्टाइन ऊपर का, और जो स्टमक है उस पर इम्पैक्ट डालता है ये जब आप भुजंगासन करते हैं। जब आप भुजंगासन करते हैं तो आपका पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, जो डायबिटीज के लिए उसमें हो गया। जब आप सामने की तरफ बेंड करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो रिवर्स होता है, तो एंटी एजिंग होता है। उसके अलावा जब हम करते हैं पीछे की तरफ जाते हैं तो ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो हमारा जो माइंड है उसके लिए अच्छा होता है। तो जितने भी बॉडी शरीर के हैं सारे के लिए बहुत लाभप्रद हो जाता है ये सूर्य नमस्कार। मतलब आसनों में अगर आप देखा जाए तो अगर आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आसन आपको सूर्य नमस्कार में कुछ भी करना है बिना वार्म अप के नहीं करना है, जो लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि बिना वार्म अप के करेंगे आपको सोचते हैं नॉर्मली आप तुरंत स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो कहीं ना कहीं मसल फुल हो जाती हैं और ढेर सारी प्रॉब्लम्स होना। तो वार्म अप जरूर, और हेड टू पोज वार्म अप होता है और नॉर्मली होता है। तो थोड़ा सा आप आर्म्स का और नेक का दिशा भी बता दीजिए, जो रोटेशंस होते हैं वार्म अप के, ये सूर्य नमस्कार के पहले किया जाने वाला, जहाँ से हम योगा शुरू करते हैं वहां पे हम आते हैं। जी, तो पहले हम अपनी नेक को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सीलिंग की तरफ देखेंगे, श्वास अंदर लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए आपके चिन को चेस्ट की तरफ लाएंगे। ये हम 5 बार कर सकते हैं। जी, इनहेल, एक्सेल। उसके अलावा हम राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं 5 बार। इससे जो भी आपकी नेक में टेंशन होती है सब बाहर आ जाती है। सोने के बाद या फिर कंप्यूटर पे बैठने के बाद आप ये कभी भी ये आसन कर सकते हैं। फिर है नेक रोटेशन। इसमें ध्यान रखना है कि आपकी आंखें खुली रहें, नहीं तो कभी कभार लोगों को डिजी भी फील होता है। ये आप दोनों साइड 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं शोल्डर रोटेशन, जिसमें हम अपने एक और अभी है, इसमें साइड टू साइड भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और इसमें ध्यान रखना जिन लोगों को सर्वाइकल है वो फॉरवर्ड बेंडिंग ये नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। सर्वाइकल वाले सिर्फ पीछे। ठीक है। और शोल्डर रोटेशन, शोल्डर रोटेशन जी, ये हम पीछे और आगे की तरफ 10 बार कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिस्ट रोटेशन भी कर सकते हैं, ताकि हमारे रिस्ट में कोई स्ट्रेन ना आए जब हम पर्वत आसन कर रहे हैं, भुजंग आसन कर रहे हैं। और फिर अपने पाम्स को खोल के ऊपर नीचे 10 बार। जी, मैं जैसा भी हाथ की बात आई तो मैं आपको बताता हूँ, इस समय सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन के टाइम में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है। सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल हाथों का ही करते इस समय। सबसे ज्यादा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी इस्तेमाल करते हैं हम हाथ से ही करते हैं मोस्टली। तो अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं गया हुआ था, किसी चैनल पर था, तो उससे किसी ने पूछा वहां पे कि आप कोई ऐसी चीज बताइए जो सबके लिए जरूरी हो, सबसे ज्यादा लाभप्रद हो। तो जो आर्म्स एक्सरसाइज है इनके बिना काम नहीं चल सकता आपका, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी आपने आर्म्स के सारे बताए, मैं इसमें 2 और ऐड कर देता हूँ। आपने किए होंगे लेकिन समय कम है, ये देखिए आप। हाँ बिल्कुल। ये प्रॉपर आपका हो गया। बताता हूँ 5 बार करना। उसके अलावा ये मुस्टिका बंद जो है ये जी हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये प्रॉपर स्ट्रेच। और एक आसन बहुत अच्छा है हाथों के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका गौमुखासन, आप देखिए दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये जिसको भी फ्रोजन शोल्डर है, आर्म्स की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आर्म्स की कैसे भी, आपको सर्वाइकल में भी आराम पहुंचाता है। ये मतलब रिलैक्स देता है। तो ये जितने भी किए जाने वाले आसन थे, हम बात कर रहे थे अभी तक इम्यूनिटी पावर की। एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं, कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं।
फिर अगला इंसोम्निया और एंजाइटी पे बढ़ेंगे और डिप्रेशन पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो हो गई आपको बायोलॉजिकल क्लॉक अपना सही करना है। 6 से 7 घंटे सोना है, 12 बजे के पहले सोने का प्रयास कीजिए। पानी ठीक मात्रा में पीजिए। निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है निगेटिव सोचना। मैंने कहा ना, युक्ताहार विहारस्य से युक्त चेतस कौशलम। और पर आपको मंगेश जी एक बात बताऊं, इतना आसान नहीं है नेगेटिव नहीं सोचना। लोग बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। आसपास के लोग अगर नेगेटिव हो ना तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ आप जो लोगों को बताना चाहेंगे जिससे वो नेगेटिविटी कम कर सके? नेगेटिविटी का मैं आपको बताऊं, आप जब सोचते हैं निगेटिविटी तो आप, मैंने पहले ही बात कही थी ना, उल्टे को उल्टा कर दो सीधा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आप नेगेटिविटी का उल्टा सोचना शुरू कीजिए। देखिए होता क्या है, निगेटिव चीजें हमेशा जल्दी पकड़ती हैं। कोई भी चीज होती है निगेटिव चीज हमेशा जल्दी आती है। जी आप जो व्हाइट कपड़ा होता है उस पर आप सूची लगाइए, कालिक लगाइए, बहुत जल्दी होती है। आप जो पानी देखिए, जब ढलान होती है, जो चीज अपने आप होती है वो बहुत आसानी से होती है। तो प्रयास कोशिश करनी पड़ेगी। पॉजिटिव के लिए कोशिश करनी पड़ती है, निगेटिव के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। सिंपल सी बात है। जो चीज हम कोशिश नहीं करते अपने आप होती है वो निगेटिव होती है। जो थिंकिंग प्रोसेस अपने आप आता है वो निगेटिव होता है। तो लाना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। आपको कोशिश करनी पड़ेगी सिर्फ। और सिर्फ आप ये सोचिए कि निगेटिव हो रहा है तो क्या है। आप एक चीज मान के चलिए, एक सिंपल सा वर्ड है, आप हमेशा सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, मैंने अपने लाइफ में देखा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कितना भी अच्छा टाइम हो, गुजरता तो वही है। फिर हम निगेटिव होते हैं। सिंपल सी बात, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा आपको वो करना है। और दूसरी बात है, अगर आप व्यस्त रहिए तो आप निगेटिव नहीं होंगे। हाँ जी, व्यस्त रहिए। अब आप निगेटिव मूवी देखने लगे जो आपको सीरीज आ रही है, बहुत जैसी आ रही है, तो आप निगेटिव हो जाएंगे। आप पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव रहिए। और दूसरी चीज है, सबसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि निगेटिव ना होने का अच्छा सबसे अच्छा तरीका, निगेटिव लोगों से थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रखिए। हाँ। और मुझे ये भी लगता है कि हम हमारी एनर्जी बहुत सारी फालतू की थॉट्स जो है उसमें वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर हम उस एनर्जी को सेव कर सकते हैं और कहीं अच्छी जगह यूज कर सकते हैं, किसी की मदद करने में, कोई किताब पढ़ने में, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने अब आप अभी जुड़े हैं। मैंने जब पहला लॉकडाउन लगा था तो मैंने 21 दिन का सेशन चलाया था, जो पहला 21 दिन का। तो मैंने सबसे कहा था, जो लोग हमसे जुड़े थे, कि आप इन 21 दिनों में एक बुरी आदत जिसको आप बुरा मानते हो वो छोड़ने की कोशिश कीजिए, और एक अच्छी आदत जिसको आप अच्छा मानते हो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर अंदर की अपनी क्रिएटिविटी को आप निकालिए, जो भी चीज आपको बहुत अच्छी करने में लगती है उसमें पॉजिटिविटी आपको अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल देखिए, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आपको पॉजिटिविटी आएगी उसमें। आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है करना क्रिएटिविटी में, वो आप करिए तो पॉजिटिविटी आपकी अपने आप अच्छी बनी रहेगी। अब होता क्या है, हम जबरदस्ती वाला जब कोई काम करते हैं वहां आना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज है, मैं एक चीज अभी एक डिप्रेशन में आएगी, मैं उसको पहले कहता हूँ, किसी से कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। मोस्टली चीजों का जो हमारे मन की जो प्रॉब्लम है उनका सबसे बड़ा रीजन होता है कंपैरिजन। हम अपने आप को कंपेयर बहुत करते हैं किसी से। सही बोला। तो अपनी जगह पे चमकता है, चंद्रमा अपनी जगह पे चमकता है। सबका अपना अपना टाइम होता है। कोई बोलने में बहुत अच्छा होता है, कोई परफॉर्म करने में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ता बहुत अच्छा है, कोई खाना पकाता बहुत अच्छा है, कोई खाता बहुत अच्छा है। तो सबकी अपनी अपनी बिल्कुल बिल्कुल और सब अपने अपने विशेष में विशेषज्ञ हैं। तो कंपैरिजन आपको कभी नहीं करना चाहिए। और हर इंसान यूनिक है। जो भी चीज आपके अंदर अच्छी है आप उसको बढ़ाइए, जो कमी है उसको आप कमी को दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी उसको कर सकते हैं। किसी अच्छाई को बढ़ा करके उस कमी को आप दबा सकते हैं कभी भी। तो इन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहिए, निगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी। आप हमें, और दूसरी बात, योग के माध्यम से अगर आप, मैं कहता हूँ आप रेगुलर सूर्य नमस्कार कीजिए, सारे प्राणायाम कीजिए, आधी निगेटिविटी करते भाग जाएगी। हाँ जी सही बोला। एक आपका बात बहुत सही थी कि दूध होता है, आप 1 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, 20 लीटर दूध, 50 लीटर दूध, कितना भी दूध रख लीजिए, नींबू की 1 बूंद उसमें डालिए, वो फट जाएगा सब। तो निगेटिव नींबू के बूंद के बराबर की होती है वो। जितनी भी पॉजिटिव टच करेगी तो नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल 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 दूर रखिए निगेटिविटी से। सही बोला।
तो मंगेश जी, अब हमारे पास आखिरी 10 मिनट बचे हैं। आई नो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, जी तो अब हम शायद डिप्रेशन और नींद की तरफ चले। जी बिल्कुल। नींद के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सूर्य नमस्कार किया, बहुत अच्छा था। बिल्कुल। इसमें भुजंगासन बहुत लाभप्रद होता है, ओके। और शशांकासन जो आप हाँ करते जी, हैं, शशांकासन आप हाँ जी, भुजंगासन शशांकासन आप करके बता दीजिए। ठीक है। तो भुजंगासन में हमें हमारे पेट के बल पर मैट पर लेटना है। दोनों पैर साथ में रहेंगे, पाम्स बाय द साइड ऑफ योर चेस्ट। आपको श्वास अंदर लेते हुए अपनी बैक को उठाना है, चेस्ट को एक्सपैंड करना है और सीलिंग की तरफ देखना है। आपका जो अपर चेस्ट है वो सिर्फ नाभि तक उठेगा। ये था भुजंग आसन। फिर है शशांक आसन। इसमें रैबिट पोज। यस, जी आप अपने हाथों को आगे स्प्रेड करेंगे, अपने फोरहेड को नीचे लाएंगे और अपने हिप्स को अपनी हील्स की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें आप अपने हाथों को अपने पैर के पास भी रख सकते हैं। ये साथी जो ये शशांकासन है, ये नींद के लिए बहुत लाभप्रद है, नींद लाने में बहुत लाभदायक होता है। बिल्कुल। हाँ तो जी, एक हाँ और जी, होता है, आप कितना भी इमोशनली डिस्टर्ब होइए हाँ जी, और आप 5 मिनट इसको कीजिए। इम्पैक्ट किसी को भी अगर लगता है तो इसका प्रैक्टिकल कभी भी कर सकता है। आपकी हाँ इमोशनल है, जो इमोशंस हैं वो बाहर निकल जाएंगे। मतलब जो नेगेटिव जी, इमोशंस हाँ होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, जी, हाँ डिस्टर्ब होते हैं, बहुत अंदर से बहुत अनईजी फील करते हैं। आप शशांक आसन कीजिए, हाँ, आपको तुरंत प्राप्त होगा 100%। बिल्कुल बिल्कुल। अपना आजमाया हुआ नुस्खा है, आई तो नो। इसको आप करेंगे, इसको तुरंत। और भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभप्रद होता है। और मैं आपको बताता हूँ नींद इंसोम्निया के लिए ये जो ज्ञान मुद्रा है, थंब हाँ अप जी, फिंगर, ये बहुत हाँ लाभप्रद जी, है। इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल। किसी टाइम आप इसको कीजिए, हाँ हाँ, जितनी देर तक आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। लाभप्रद होती है आपकी हाँ नींद ना आने की समस्या में, जिनको इंसोम्निया होता है। और जितने भी कंसंट्रेशन वाले आसन होते हैं, जैसे हाँ कि जी, ताड़ासन हो गया, ताड़ासन हो गया, दक्षासन हो गया, वो सारे नींद ना आने की समस्या में लाभप्रद होते हैं। उसके अलावा एक चीज और है जो प्रैक्टिकली आपको करनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन बुक रीडिंग की आदत डालिए, ऑनलाइन बचकर, मोबाइल से नहीं, तो नींद आना अपने आप शुरू हो जाएगी, जिनको प्रॉब्लम हाँ होती है। जी, हाँ जी, और हाँ जी, कोशिश कीजिए कि खाने का जो है समय जो है और सोने का समय थोड़ा सा गैप बना के रखिए। 8 साढ़े हम्म। 9 बजे तक आप भोजन कर लीजिए, तो नींद आपको अपने आप अच्छी आएगी। हाँ, 12 बजे इसमें आप मेरे खाएंगे। हिसाब से हम हल्दी का दूध भी ऐड कर सकते हैं। जिनको जी हल्दी का दूध या पानी लेना है सोने से पहले वो ले सकते हैं। नहीं, अगर आप औषधियों में जाते हैं तो मैं आपको बताऊं, एक जटामासी होता है। हाँ जी, जटामासी का चूरन बहुत फायदेमंद होता है नींद के लिए। और एक मैं बिल्कुल। आपको नुस्खा और बताता हूँ। आप नींद जिनको ना आने की समस्या है, वो ऐसा करें, गर्म पानी की बाल्टी में पानी, ल्यूकवार्म वाटर रखें और उसमें अपने दोनों पैर डुबोएं हाँ सोने से जी, पहले। हाँ जी, घुटने तक जो है ना, घुटना जो हमारा है, ये देखिए आप, यहाँ तक के पैर जो है हाँ हाँ। वो क्या आप रखिए उसमें, और उसके बाद निकाल के तुरंत आप पोष लीजिए अच्छे से। आपको उसके मैं बाद आप बता दूं, मुझे भी कम नींद आती है, तो आपने जो जो बोला है मैं वो सब करती हूँ। मेरे को भी थोड़ा कम नींद का प्रॉब्लम है, तो मेरे फोन बंद हो जाते हैं 9 बजे। मैं अपने पैरों को डिबो के रखती हूँ, किताब पढ़ती हूँ। इनफैक्ट उसमें मैं सॉल्ट भी डालती हूँ जी ताकि जी, मेरे उसका पैर रीजन वार्म होता है, रहे। जब हम जो लोग बहुत थिंकिंग बहुत सोचते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन हमेशा सर की तरफ जाता रहता है, यस यस, इसलिए उनको नींद नहीं आती है। जब आप पैर गर्म करेंगे तो इसके बाद जब पोछेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम से नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो नींद आती है। उसके अलावा आपने सुना होगा योग निद्रा। हाँ जी, योग निद्रा वो आधे घंटे का प्रोसेस होता है, बहुत लाभप्रद है नींद ना आने के लिए। मतलब बिल्कुल। उससे बेटर कुछ है ही नहीं। अगर आप योग निद्रा का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं नींद के आई लिए, नो, आई अभी नो। प्रधानमंत्री जी ने भी उसके बारे में ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। हाँ जी, बहुत मतलब एक स्पेशल एक्सपीरियंस है योग निद्रा का हमारा, जो भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल। लोग रहे हैं, मैंने उन पे आजमाया है। हाँ शवासन भी हाँ, लाभप्रद होता है, ऐसा नहीं है। जितना भी थॉट उसमें होता है, क्या योग निद्रा में थॉट प्रोसेस आपको रोकना होता है। जितना थॉट्स आपके हम्म। चलते रहेंगे, उतना आपको हम्म। नींद आपकी डिस्टर्ब होगी। हम्म। जितना आप और योग काम, निद्रा आपको फ्रेश भी बहुत रखता है, जी क्योंकि उसके बाद इतना ज्यादा रिलैक्स फील होता है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स हो जाता है।
बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपकी नींद ही पूरी हो जाती है, एक तरीके से देखा जाए आधे घंटे की नींद 3 घंटे की नींद के बराबर होती है, बिल्कुल सही बोला। कवर कर देती है। तो ये चीजें हो गई नींद के लिए। अब अगला टॉपिक हमारा हो गया एंजाइटी डिप्रेशन। जी हाँ, तो जी हाँ। एंजाइटी के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप कैसी भी आपको एंजाइटी हो, कितना भी आप परेशान हो, हमने आपको पहले कहा था कि हम इसको करके बताएंगे। हमारा जो हमने डिसर्टेशन अपना किया था, तो हमारा टॉपिक था बच्चों की एकेडमिक एंजाइटी, चिल्ड्रंस की एकेडमिक एंजाइटी। हाँ जी, एकेडमिक एंजाइटी और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था। 30 बच्चों को कराया था, 30 बच्चों को नहीं कराया था, तो हमारा खुद का कराया हुआ है। तो इससे सूर्य नमस्कार बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा आपको एकेडमिक एंजाइटी होती है, आपको टेंशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप सिंहासन कीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ सिंहासन। आपको तुरंत, आप कितना भी आप स्ट्रेस में हो, कितना भी आपको एंजाइटी हो, आप सिंहासन कीजिए। इस तरह से देखिए, ये ऐसे आपको बैठना है, ये जवान को बाहर निकलना है। आपका पूरा का पूरा स्ट्रेस, पूरा का पूरा जो है वो आपका तुरंत निकल जाएगा। आप 4-5 बार कीजिए। पहली बार तो दूसरा आपको हंसी आएगी देख के, तो थोड़ा सा वैसे अच्छा लगेगा। नहीं तो आप मिरर के सामने कर सकते हैं इस तरह से। आपको ध्यान रखना है, हाथ इस तरह से नहीं, चेस्ट आपके स्पेंड रहेंगे, टंग को बाहर निकलना है। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, तुरंत आपका दूर हो जाएगा। उसके अलावा एंजाइटी में भी वही बात आती है। एंजाइटी डिप्रेशन मोस्टली क्या होता है कि जब हमारी जो हम सोचते हैं, हमारी जो अपेक्षाएं होती है, जो पूरी नहीं होती है, तब हमें डिप्रेशन होता है, तभी हमें एंजाइटी होता है। तो हम अपने आप का जो होता है ना, हम अपना स्व मूल्यांकन जरूर करते रहे बीच बीच में, क्या पा सकते हैं, क्या नहीं पा सकते हैं। और उतना एक जो होता है ना कि एक कहावत अपने अपने बुजुर्गों में से, जितनी बड़ी चादर उतना बड़ा पैर फैलाए। अगर उतना बड़ा हम पैर फैलाते रहेंगे तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा। अब समय जो कोविड का है, बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अप एंड डाउन लोगों में हुए हैं, मार्केट में बहुत उछल कूद मची है। बात हुई जान की, जहान की प्रॉब्लम है, बहुत ढेर सारी जॉब जाएंगी, बहुत कुछ होगा। आप ये मान के चलिए, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो जो प्रॉब्लम आई है वो भी परमानेंट नहीं होंगी। आपको थॉट प्रोसेस को ये रहना है, ये भी परमानेंट नहीं रहेगा, ये भी धीरे धीरे निकल जाएगा। बिल्कुल। और योग के माध्यम से अगर हम बात करें तो हम इसमें आराम से सारे प्राणायाम करिए। आप नींद की में भी रह गया था, एक होता है तितली प्राणायाम, जानते होंगे आप। ये मैं आपको करके बता देता हूँ कि ये आराम से हो जाएगा। आप लोग देखते हैं, नॉर्मली आप ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे इस तरह से, टंग को आपको बाहर निकालना है, श्वास अंदर लेनी है, मुंह से आपको सांस लेना है, टंग को गोल बनाना है, ये हो गया तितली प्राणायाम। आप जो अभी आवाज कहते हैं गुस्सा, और देखिए आपको कितना भी गुस्सा आ रहा है, इसको आप कीजिए, गुस्सा आपका दूर हो जाएगा तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। तुरंत की बात है। ये होता क्या है, इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम होता है, ये आपको शीतलता प्रदान करता है, जब बॉडी को कूल रखता है और इमोशन को कंट्रोल धीरे धीरे। इसके अलावा एक होता है चंद्रभेदन प्राणायाम, ये नींद ना आने की इंसोम्निया में है। ये जो मैंने अभी तितली कराया था, ये आपका डिप्रेशन में भी फायदा करेगा, एंजाइटी में भी फायदा करेगा। हाँ जी, हाँ जी। है वो इंसोम्निया में बहुत फायदा करेगा। आपको राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, पहला ज्ञान मुद्रा में रहेगा, हाँ जी। हमें दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में, राइट नॉस्ट्रिल आप बंद करेंगे, लेफ्ट से आप इनहेल करेंगे, और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, सेम टाइम ऑफ इनहेल, सेम टाइम ऑफ एक्सहेल। तो इससे क्या होगा, जो हमारा चंद्र होता है, जो हमारा मेंटल जो होता है, जो वहां पे जोर पड़ता है, हमारा चंद्र मजबूत होता है, तो मानसिक रूप से हमको शांति प्राप्त होती है। जब मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी तो नींद भी अच्छी आएगी, और जो मानसिक प्रॉब्लम है, जो भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, क्रिएट हो रहा है लोगों में है, क्या होगा क्या सर्टेनिटी, वो चीजें जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी अगर आप रेगुलर इन चीजों को करते हैं।
तो ये सारी बातें हो गई। आप चाहें तो मंगेश जी, यस, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ। आई थिंक इतनी सारी चीजें हैं, बात करने को हमें 1, 2, 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे फ्रैंकली। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। बहुत एक लास्ट आखिरी सेंटेंस जो आप लोगों को बोलना चाहते हैं इस पैंडेमिक में, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये इस पैंडेमिक में मैं तो सिर्फ मेरा हमेशा कि रहता है कि हम जो योग शिक्षक हैं, योग सिखाते हैं वो अलग बात है। तो योग का जो पहला अर्थ होता है जुड़ना, इस समय जुड़ना मन है, तो सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो करते रहिए। बिल्कुल, सिर्फ डिस्टेंसिंग फिजिकली सोशल, नॉट मेंटली, नॉट इमोशनली, नॉट इकोनॉमिकली। जितने भी और ऑप्शन हैं उनसे आप और ज्यादा लोगों से जुड़िए। जब आप जुड़िए तो योग जोड़ने का ही काम करता है। तो आपस में जुड़े रहिए, मजबूत बने रहिए। और सबसे लास्ट बात ये भी, अगर आप योग शारीरिक रूप से कुछ ना कर पाए, मानसिक रूप से कुछ ना कर पाए, पर सहयोग जरूर एक दूसरे का करिए। मैं हमेशा बात करता हूँ, तो हो सके आपसे, ना हो सके कोई बात नहीं, लेकिन सहयोग आप जरूर कर सकते हैं। सहयोग आप विचारों का कर सकते हैं, सहयोग आप भावनाओं का कर सकते हैं, सहयोग आप शारीरिक कर सकते हैं, मानसिक कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप आर्थिक रूप से सहयोग करें। आप कोई बहुत परेशान हो तो आप इमोशनली थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, वो खुश रहेगा। तो सहयोग जरूर करते रहिए। अपने आप को संकुचित होकर मत रखिए, अपने आप को फैलाइए। जो भी आपके पास है वो बांटते रहिए। आप जितना बांटेंगे उतना आपका बढ़ता जाएगा। तो भी चीज आपके पास है। जी तो हाँ, जी हाँ, सहयोग करते रहिए, सब कुछ बांटते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करता हूँ कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, लोग नहीं देखा होगा, लाभ जरूर पहुंचेगा। मैंने कोशिश की है थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली चीजों को तुरंत करके बताने वाली। लिखने पढ़ने की तो बहुत चीजें आपको बहुत बिल्कुल बिल्कुल मैं बताने का प्रयास किया है। मेरा 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बिल्कुल मैंने बिल्कुल और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को अच्छा लगा होगा, लोगों को लाभ पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ जी, बिल्कुल। तो हम इस सेशन को एंड करेंगे कोविन के एंथम से। कोविन का एंथम हम प्ले करेंगे। मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हम सब मिल जाएं तो, मिलकर हाथ बटाएं तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी। आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। थैंक यू, नमस्ते। जी नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप सबको